पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मौसम विभाग की तरफ से बारिश होने की संभावना जताने के बाद एक वीडियो जारी करके किसानों को विशेष अपील की है। उन्होंने किसानों को हरा छोलिया ना बीजने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण जमीन में नमी की मात्रा ज्यादा है, जिस कारण अगर फसल को बीजा जाए तो वो बर्बाद हो सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आगे कहा कि लगातार जोने की बिजाई के कारण पंजाब के कई इलाके डार्क जोन में आ चुके हैं। इसलिए चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में कमेटी का गठन किया गया है, जो पूरे पंजाब का दौरा करेगी। साथियों, पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਹੈ, ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਝੋਨੇ ਵੱਲ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੋਨਾ ਹੀ ਬੀਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ 80% ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਕਿ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਹੈ। दिन रात असी मेहनत कर रहे हैं। इस सिलसिले असी मेरे चीफ सैकटरी जी की अगवाई दे एक कमेटी का गठन किया। वो कमेटी स्टडी करके ਵੱਖ-ਵੱਖ किसानों नाल गल करके ਵੱਖ-ਵੱਖ पिंडां जाके वो मैनू रिपोर्ट सौंपूगी कि आपां झोने तो बिना बाकी होर किहड़ियां फसलां ने जिहड़ियां पानी की घट वरतों जिन्हां च हुंदी होवे ते ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅਤੇ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਸਮਤੀ, ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਮੂੰਗ, ਦਾਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। सीएम भगवंत मान ने कहा कि हम कपास की फसल के रकबे को पंजाब में बढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हमने किसान मिलनी का आयोजन किया था और किसानों के सुझाव लिए थे। इसके साथ साथ भगवंत मान ने कहा कि मैं सभी अफसरों को पानी की चोरी रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। 1 अप्रैल से नरमा किसानों को नहरी पानी मिल जाएगा। आम आदमी पार्टी ने वीरवार को मोदी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ पोस्टर मुहिम की शुरुआत की है और देश भर के 22 राज्यों में अलग अलग भाषाओं में बैनर लगाने का काम आरंभ कर दिया है। ये जानकारी पार्टी के कौमी करणवीर गोपाल राय ने दी। इसके साथ साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरभजन ईटीओ ने कहा कि मुहिम का उद्देश्य देश भर में ये संदेश देना है कि भाजपा की तरफ से नागरिकों द्वारा किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुहिम का उद्देश्य देश भर में भाजपा के संदेश देना है कि पार्टी अपने वादे पूरे करने में असफल रही है। किसानों के साथ किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। भाजपा समस्याओं को हल करने की बजाय लोकतंत्र को तबाह करने की कोशिश कर रही है। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਚੰਦ ਘਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਂਝੇ ਪਏ ਨੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਡਰਾ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜੇ ਗਏ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਘਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਰਿਹਾ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੀ CBI ਯੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਦੀ ED ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੋ ਵਿਪਕਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਇਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੋਦੀ ਹਟਾਓ ਦੇਸ਼ बचाओ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਉਹ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई के बीच बीते बुधवार परिवार अचानक कहीं चला गया। 24 घंटे के बाद परिवार वापस लौट आया है। परिवार का कहना है कि वो गुरु घर में सेवा के लिए गए थे। इससे अधिक परिवार ने मीडिया से बातचीत करने से मना कर दिया। दरअसल पुलिस भी माता पिता और पत्नी के बारे में जानकारी साझा नहीं कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर अमृतपाल सिंह के श्री अकाल तख्त साहिब पर पहुंच सरेंडर करने की सूचना फैल गई थी। यही समय था जब अमृतपाल के माता पिता और पत्नी को आखिरी बार उनके आसपास के लोगों ने देखा था। अमृतपाल के सरेंडर करने की सूचना के बाद अमृतपाल के माता पिता और पत्नी सभी घर श्री अकाल तख्त साहिब के लिए निकल गए थे। आपको बता दें कि पुलिस भी इस बारे में कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। पुलिस का कहना है कि परिवार उनकी निगरानी में सुरक्षित है, लेकिन परिवार कहां है और उन्हें कहां रखा गया है, इस पर पुलिस ने कोई टिप्पणी नहीं की है। राज्यसभा सांसद और आप नेता संजय सिंह ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि क्या देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए? ये दरोगा जी को भेजकर पोस्टर फड़वाने का क्या मतलब है? इसका मतलब मोदी जी के दरोगा और मोदी जी की पार्टी कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ ही होना चाहिए। भारत का लोकतंत्र एक अजीब दौर से गुजर रहा है। इस देश में ये पूछना कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, अन्याय हो गया। अब देखिए ये पोस्टर जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए, और ये पोस्टर लगते ही एक दरोगा जी पहुंच जाते हैं, नरेंद्र मोदी जी के दरोगा जी। ये दरोगा जी जाते हैं और ये पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ होना चाहिए? दरोगा बेच के आप वो पोस्टर फाड़ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है कि क्या भारत का पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। इसका मतलब मोदी जी के दरोगा, मोदी जी की पार्टी ये मानती है और कहती है कि भारत का प्रधानमंत्री अनपढ़ ही होना चाहिए। अब आप देखिए दरोगा जी पोस्टर फाड़ रहे हैं, कोई काम नहीं इनको, ये सारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं। तो अब ये आप लोगों को तय करना है। अगर आपको लगता है कि भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, तो अपने सोशल मीडिया के जरिए जो भी माध्यम आपके पास उपलब्ध है, अभियान चलाइए और बताइए कि क्या भारत का पीएम, भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जय हिंद। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह की तलाश को लेकर अमृतपाल सिंह को लेकर एक जगह जगह चेकिंग की जा रही है। इस मामले में डीसीपी परमिंदर सिंह भंदर ने कहा कि अमृतपाल यहां पर सरेंडर करेगा, हमें मीडिया रिपोर्ट से पता चला है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि अमृतपाल को सलाह है कि जहां भी हो सरेंडर करना है कर दे, उसके साथ कानून के हिसाब से बर्ताव होगा।
नहीं, यहाँ कोई ऐसी हमें कुछ नहीं पता, यहाँ अमृतसर में है, लेकिन आपसे ही पता चल रहा है कि यहाँ पेश हो रहा है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जहाँ भी उसने पेश होना है उसको पेश हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे शहर में तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है और हमारे पूरा जो हमने अपनी रूटीन ड्यूटी है वो कर रहे हैं। सर, नाकेबंदी वगैरह आप लोगों ने की हुई है जगह जगह के उसको लेकर? हमारे लगातार यहाँ G20 होके हटा है, उससे पहले भी VIP मूवमेंट, आगे आने वाले टाइम में भी यहाँ लोग बाहर से आते हैं, काफ़ी VIP आते हैं, तो हमारा डे नाइट की अपने ड्यूटी चलती रहती है। उसमें हमारे नाके लगे हैं, दिन के टाइम, रात के टाइम, अलग अलग जगह पर। पूरे शहर को हमने अपना हिसाब से पूरा प्लान किया हुआ है। सर, एक वीडियो जारी करके अमृतपाल ने खुले रूप से पंजाब पुलिस को चुनौती देने की कोशिश की। उसने बोला कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, मैं लगातार फरार हूँ। और उसका ये भी कहना है कि सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर आकर उसके लिए इकट्ठा होना चाहिए। इस वीडियो को पंजाब पुलिस कैसे देखती है? देखो, कोई भी आदमी कुछ बोल सकता है, लेकिन मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पूरा भी मतलब हम सबको मिलकर रहना चाहिए। अगर कोई वांटेड आदमी चाहता है, मतलब वांटेड है, पुलिस को उसकी ज़रूरत है तो उसको पेश होना चाहिए, ना कि ऐसे काम में और लोगों को, हमारे नए जो बच्चे हैं उनको इस पास से लगाना, वो अच्छा नहीं लगता। हम सबको जो पूरा यहाँ समाज है मिलकर रहना चाहिए और उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई है उसको खुद अपने आप पेश हो जाना चाहिए। अमृतपाल को आपकी तरफ से क्या मैसेज देना चाहिए पंजाब पुलिस? बस मैं तो यही कहूँगा कि अगर उसको पुलिस को वांटेड है तो उसको पेश हो जाना चाहिए, बस तो पेश होना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर नीतू घनघस और स्वीटी बुरा से मुलाकात की है। दोनों ने चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में मुलाकात की। इस मौके पर सीएम खट्टर ने हरियाणा उत्कृष्ट खिलाड़ी सेवा नियम के अंतर्गत ग्रुप बी की नौकरी का ऑफर लेटर और 40 लाख कैश रिवॉर्ड प्रदान किया है और मुख्यमंत्री ने दोनों खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा की रेल लाइन का इलेक्ट्रॉनिफिकेशन होने पर खुशी जताई है। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का धन्यवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि 1700 किलोमीटर के ऊपर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो चुका है। आज बहुत ही प्रसन्नता का ये विषय है कि भारत सरकार ने जो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल लाइंस ये जो शुरू किया, इसमें हरियाणा जो है अपने पूरे टारगेट को पूरा कर चुका है। 1700 किलोमीटर से ऊपर रेल लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है और इसमें जैसे ही रेलवे की ओर से ये समाचार मिला, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं होकर के ट्वीट किया है, हमने उसको रीट्वीट किया है और एक अच्छी उपलब्धि हरियाणा के खाते में गई है। इसके लिए मैं हरियाणा के रेलवे अधिकारियों को, पावर उनका जो इलेक्ट्रिफिकेशन डिपार्टमेंट है उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। श्रीनगर के लाल चौक में बीचों बीच कड़ी सुरक्षा के बीच भगवान कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा 3 साल से कोरोना के कारण प्रभावित थी।